Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. This is the last interview of 2024 and it's a powerful one because we are talking about honing our intuition. इसे gut feeling कह लो या inner knowing, a strong sense of intuition helps us in every area. From making important decisions in our professional lives to picking the right nanny for our kids. In this episode, you will discover what's intuition, why do we need it, and how it helps us, why some seemingly intuitive decisions go wrong, and easy to follow tools to activate and strengthen your intuition. I'm speaking with Shraddha Subramanian. She's an award winning business manifestation, leadership, and executive coach, and India's first intuition expert. She's also the founder and CEO of Sparkling Soul. Healing through cancer, she transitioned from employee to entrepreneur as her purpose evolved to impact this world by enabling organizations and businesses to live their potential. She believes everything you desire is available now. So get ready to sharpen your gut feeling and to make decisions that are in your best interest. Please help me bring more such conversations to you by sharing the podcast with people you care about. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is Maitri, a social media professional, a wife, and a mother. Marriage is one of the biggest steps we take. And on this podcast, we discuss finding ourselves after happily ever after. थोड़े ideas, थोड़े rants और बहुत सारा food for thought. Join me and my guest because we get you. And now to our guest. Hi Shraddha, welcome to Little Fixes. Hi, Maitri. Very happy to be here. I'm so happy because we are going to talk about intuition today. जब मुझे इंट्यूशन के बारे में पता चला था कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में सिचुएशंस को फिगर आउट करने में कि क्या करना सही है क्या करना सही नहीं है, तो मुझे लगता था कि हाउ कैन यू डू दैट. लॉजिक भी होना चाहिए. मुझे लॉजिक का ज़्यादा लगता था, इंट्यूशन का इतना नहीं लगता था. फिर अबाउट 2 years अगो माई टैरो रीडर सेड कि तुम्हारा इंट्यूशन अच्छा है, यूज़ इट. और Hmm. इस साल में तुम्हें ज़्यादा यूज़ करना है. आई डोंट रिमेंबर लास्ट ईयर का था या उससे पहले वाले ईयर का था. लाइक ओके. बट फिर भी जब मेरे सामने कोई सिचुएशन आती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये सही है ये गलत है, बट लगता था क्या मैं सही कर रही हूँ. तो बड़ा कंफ्यूजन होता है. तो Classic बिफोर वी स्टार्ट. scenario. Classic या scenario. Yes, I've या heard it a lot of times already, Maitri. exactly, because you are helping people with their intuition. So before we start all of that, first of all tell us Shraddha कि what is intuition to you. आप कैसे define करते हो? Intuition to me is your internal navigation system. जो जो अंतर्ज्ञान कहते हैं, that's available for people always. और जो आज लोग दुनिया में यूज नहीं कर रहे हैं उतना. सो फॉर मी इट्स योर इंटरनल नेविगेशन सिस्टम. हम सबको पता है योर गूगल मैप्स इज योर एक्सटर्नल नेविगेशन सिस्टम. बट Hmm. इंट्यूशन आपको कहाँ जाना है और आप फास्टेस्ट तरीके से वहाँ अपने गोल्स तक जो भी आपको अचीव करना है या जो भी आप बनना चाहते हैं, how can you reach there in the fastest possible way is intuitions. ओके. कोई एग्जाम्पल से हमें समझाओ जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए. सो जब जैसे आपने कहा अभी जस्ट राइट नाउ कि मुझे लगता है कि ये सही है और मुझे लगता है कि ये गलत है या ये पाथ मुझे लेना चाहिए, मुझे लगता है, पर फिर मुझे डाउट भी आने लग जाता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ. ये जो ये जो अंतर, जो दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट कीप्स ऑन गोइंग, राइट, हम्म. उसके परे है इंट्यूशंस. मतलब आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको समझ रहा है कि ये रास्ता मेरे लिए सही है, बट मैं वो रास्ते को चूज नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि लॉजिकली आउटसाइड इन द वर्ल्ड क्या चल रहा है उसको मुझे सुनना है ज़्यादा, उससे मुझे इन्फ्रेंस लेना है, उससे मुझे डिसीजन मेकिंग करना है, राइट. बट जब आप सबके पास एग्जाम्पल्स हैं, टू बी ऑनेस्ट मैत्री, मतलब दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस साइंस लिव्स इन अस. जो हम डिस्कवर, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने कभी ये सोचा कि ये चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए और वो तुरंत उसी वक्त हो गई.
बिल्कुल, हर एक हुँ, के पास ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि मैंने सोचा कि मे बी माय स्पाउस विल दिस समथिंग टू मी, मेरे बच्चे या फिर मेरे काम में समवन विल शेयर दिस विथ मी, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ हो जाए और वो इमीडिएटली हो गई। सो वी ऑल हैव इट। वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल कुड बी हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस ऑफ अलाइनमेंट, जहाँ मैंने वो एनर्जी फ़ील की है, जब मैंने एक हाई एनर्जी फ़ील की है और इमीडिएटली मुझे जो चाहिए था वो मेरे लाइफ़ में हो गया, और मुझे ऐसे भी लगा कि ये मैंने पहले देखा है, ये मैंने पहले महसूस किया है, ये मोमेंट, ये पल, राइट? सो हुँ, ये वेरी सटल होता है, लेकिन ये बहुत प्रेवलेंट भी होता है अगर आप उस चीज़ को सुनेंगे या महसूस करेंगे या देखेंगे। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, टू बी ऑनेस्ट। इंट्यूशन कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। It comes maybe via a visual to you, it will come via कोई आपको जस्ट एक आवाज़ होगी which will tell you this is what it is। आप महसूस करेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि गूज़बम्प्स आ रहे हैं, राइट? दिस इज़ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। सो हुँ, इस तरीके से भी आप इंट्यूशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ को। सो वेरी सटल एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जब आपको पता है कि ये मुझे चाहिए था और ये हो गया। ओके। और वो हुँ, उसी हुँ, हुँ। मोमेंट में हो गया, काइंड ऑफ यू जस्ट डिडन्ट थिंक मच अबाउट इट। हाँ, ओके। अब देखो श्रद्धा, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इंट्यूशन है, मान लो मेरे सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आई, हुँ, तो अब मैं उसको पिक करूँ या नहीं करूँ, जिसे गट फीलिंग कहते हैं कि करेक्ट, लेना इट्स अ चाहिए गट या नहीं फीलिंग। लेना चाहिए, हुँ, तो व्हाट इज़ माय इंट्यूशन टेलिंग मी? अगर मेरे इंट्यूशन ने मुझे बोला कि इट इज़ गुड फॉर यू, गो अहेड विद इट, हुँ, या फिर मे बी इट इज़ सेइंग कि मत करो, इससे तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, हो सकता है लॉस ही हो जाए। मतलब इस तरीके की हुँ, चीज़ों में हुँ। वी कैन फिगर आउट सिचुएशंस, ठीक है? और आपने भी कुछ एग्जांपल्स बताए, बट नाउ आई एम गेटिंग अ बिट मिक्स्ड अप कि इंट्यूशन और प्रेमोनिशन में डिफरेंस क्या है? सी, ये डिफरेंस थिंकिंग और इंट्यूशन का है, राइट? हुँ, जब आप किसी भी कोई भी आपके पास एक अ, विज़ुअल या कोई थॉट ऐसे आ रहा है जो आपको श्रिंक कर रहा है बेसिकली, आपको फ़ियरफुल कर रहा है या आपको स्टॉप कर रहा है चीज़ों को करने से, दैट इज़ नॉट इंट्यूशन, दैट इज़ मोर थिंकिंग। जब आपके पास एक यू you नो आपको एक स्पार्क ऑफ आइडिया फील होता है कि वाओ, दिस इज अ सर्ज ऑफ एनर्जी दैट यू फील, द सर्ज ऑफ एनर्जी, आपको समझ आता है कि ये कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज दैट फ्लोज इन, लाइट बल्ब मोमेंट्स हम जब कहते हैं कि अचानक से कोई एक आइडिया आया है, दिस इज हाउ इट इज, हुँ, दैट इज़ इंट्यूशंस। जब आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो आपको फ़ील होता है पहले से कि ये होने वाला है, और मोस्टली जब वो गलत वाला जो फ़ीलिंग आता है ना कि ये कुछ तो गलत होने वाला है, दैट्स मोस्टली कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ थिंकिंग। ये दिस इज़ मोर थिंकिंग, बिकॉज़ थिंकिंग ऑलवेज़ श्रिंक्स यू एंड इंट्यूशन ऑलवेज़ एक्सपांड्स यू। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। हुँ, ओके। तो अम, ये जो हमारा इंट्यूशन है, इसको यूज़ करने के या ज़्यादा इंट्यूटिव होने के हमें क्या फ़ायदे हैं? क्यों हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए? वाओ! सच अ ब्रिलियंट क्वेश्चन मैत्री, मतलब ये आई थिंक ये मेरा मिशन ही है टू हेल्प पीपल बी मोर इंट्यूटिव। एंड व्हाई आई से मोर इंट्यूटिव, बिकॉज़ आई बिलीव कि वी ऑल आर इंट्यूटिव। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंट्यूटिव नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो एक्सपीरियंसेस नहीं है। वी ऑल हैव दोज़ एक्सपीरियंसेस, इट्स जस्ट दैट हम लोग उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हमारे खुद के अच्छे के लिए, एंड मोर और लेस पीपल अराउंड अस, ओवरऑल इन द whole game of the community or the society that we can actually bring on. So intuition का सबसे पहला benefit ये है that it can help you in decision making, in faster decision making. अब हम सभी को पता है कि डिसीजन फटीग इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी ऑल डील विथ ना, सुबह से हुँ, रात तक वी आर मेकिंग
I think more than 30,000 decisions. No, it's a study that's done. So 30,000 decisions अगर हम लोग कर रहे हैं, more than 30,000 दिन भर में, तो डिसीजन फटीक तो होने ही वाला है। जब आप कोई डिसीजन ना भी ले रहे हैं, वो भी एक डिसीजन है, राइट? So I know where you're coming from, I can sense. so so जब ये हो रहा है ना, डिसीजन फटीग जब हो रहा है, तो इट इज टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ अस। सारा Hmm. एनर्जी जो है, एनर्जी लीक इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सो मेनी डिसीजंस, यस नो, करना है नहीं करना है, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग इनटू इट, राइट? Hmm. नाउ अगर मैं decision making fast कर सकती हूँ using my intuitions, so I am Hmm. not getting into this trap of decision fatigue. That's the biggest advantage I have. And then the energy जो हमारे मेरी energy बचेगी ना, काफी सारी energy I will save Hmm. because I am not getting into that space of decision fatigue, that I can utilize in creating whatever I want to. A very simple example I want to share. People come to me and say, we want to do this. They have like a list of things that they want to do. And then they say, Shraddha, we are not able to do it because, they always feel a pressure of time. They always feel ki, uh, you know, for them, they don't have resources to do it. Time is also as a resource. And my question to them is, ki, where all your energy leak is happening, have you actually sat and actually identified that? Because Hmm. if we just capture the energy leaks, मैत्री, दिन भर में ये जो डिसीजन फटीक की वजह से हो रहे हैं, या फिर जो इनेटली कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे, which keeps on kicking those kind of things which takes our energy away. If we actually capture the energy leak, we will find that we have immense amount of energy that's available for us to accomplish बहुत कुछ जो हम करना चाहते हैं, बट वो हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज हम तो एक ही चीज लेके बैठे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो टाइम तो बहुत सारा है बिकॉज सक्सेसफुल पीपल के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। जब तक आप अपना लाइफ टाइम पे बेस करेंगे, आप हमेशा आपको लगेगा कि आप लैग कर रहे हैं, हम पीछे हैं किसी और से या खुद से, जो खुद क्रिएट करना चाहते हैं ना, दैट वर्जन ऑफ यू, आप उससे पीछे हैं। But the Hmm. moment you shift your game to energy, because if you're basing something on limited as a resource, which is time in this case, you will always feel limited. You will always feel that there is a lot of limitation I'm working with, and that would not work. You will keep on bringing limitations into you and system. So आप एक expanded boundaries है ना, छोटी 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 होते जाएगी आपकी दुनिया, to create like that way. And when we work with energy, we are expanding the boundaries, because आज मैं 3 काम कर सकती हूँ दिन भर में अगर, with the energy I have. And if I go on working on sealing my energy leaks and really using that energy, शायद मैं कल को 5 कर सकती हूँ, परसों में भी 7 चीजें कर पाऊंगी, and then I go on expanding when I'm using my energy like that. So what is important here is to really not base your things on time, number one. And as I said कि intuitions आपको जब decision fatigue से बचा रहे हैं, ये सब available है। ये तो एक aspect of your life है। जब आप Hmm. ये तो very basic thing मैंने कहा कि it will help you in expanding yourself. There are other things actually that can happen is, your relationship with yourself will start to improve, because see, if you look at it, सारा गेम एनर्जी का है ना। Hmm. अगर आप सुबह से ऑफिस जाके शाम को आ रहे हैं, या आप दिन भर अपने होम ऑफिस से काम कर रहे हैं, या आप अपने साथ है दिन भर, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन टू एनीथिंग, राइट? इफ योर एनर्जी रिमेन्स हायर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, राइट? And then the Hmm. rest of the life is actually, you are able to spend time with your friends, your hobbies, and all the boxes that you actually want to really check are checked because your energy is high. So intuition helps in very big way. The most important is decision making, but
subtly सब जगह पे it has an impact that it can create, and it's very beautiful to work out of intuitions, to be honest. ओके, नाउ आई एम इवन मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, टाइम पावर्टी माइंडसेट वाली। मुझे भी लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी। मैं कर सब लेती हूँ, लेकिन जब मुझे अपनी लिस्ट दिखती है काम की, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स, ओ माय गॉड, इतना सारा! ओवरवेल्म बहुत जल्दी फील होता है। पूरे Correct. वीक का सब कुछ दिखता रहता है, एंड आई एम लाइक ये करना है, और उसके बाद हो भी जाता है। लेकिन आई थिंक यू आर राइट, वो डिसीजन फटीग वाली चीज़ आ जाती है कि क्या-क्या करना है, कैसे करना है, एंड यू आर सेइंग कि इंट्यूशन हमें उसमें हेल्प कर सकता है। और अगर वो हमें हेल्प कर सकता है, तो जैसे मान लो आज मेरे पास 5 टास्क हैं जो मेरा काफ़ी टाइम माँग रहे हैं और मुझे करना है, क्योंकि मैंने सोचा है कि आज मुझे ये सब अकम्प्लिश कर देना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, बट अगेन दिस इज़ अ डेडलाइन। तो हाउ विल इंट्यूशन हेल्प मी कि वो मेरा सारा चीज़ अकम्प्लिश हो जाए आज? और डू यू थिंक कि इंट्यूशन मुझे बताएगा नहीं तुम्हें शायद इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है? राइट, सो सबसे पहले इंट्यूशन का जो बेस है ना, एज आई सेड, इट्स एनर्जी. सो इफ यू सी व्हेन यू वर टॉकिंग कि श्रद्धा इतना लंबा लिस्ट है और टाइम पावर्टी वाला जो स्पेस है दैट यू आल्सो फेस. सो टाइम पावर्टी वाला जो फेस है, व्हाट इज इट क्रिएटिंग फॉर यू? वो आपके लिए क्या बना रहा है? वो ये बना रहा है कि ऑलरेडी आपके मन से, आपके दिमाग से आप ऑलरेडी टायर्ड एज अ पर्सन उस लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज आपके मन में ऑलरेडी चल रहा है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है. तो यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑन अ नोट विच इज लाइक अ माइनस नंबर ऑन द एनर्जी, राइट? बिकॉज हाँ। आप वहां पे वही फील कर रहे हैं. बट हुँ, जब आप एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, आप ये नई नई बात नहीं है, आप अपने आप के बारे में ऑब्जर्व कीजिए कि जब वो लिस्ट को आप एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, कि कोई दिन ऐसे होता है कि हाँ बहुत सारा करना है, बट यार आई एम वेरी एंथुजियास्टिक कि आज ये सब खत्म हो जाएगा, एंड इट्स सो फन टू डू इट, इतना मजा आने वाला है, आई एम गोना बी ऑन अ पॉडकास्ट एंड मैं आज इस गेस्ट से बात करने वाली हूँ, लाइक ऑल ऑफ दैट थिंग्स, राइट? सो हुँ, व्हेन दैट हैपेंस, आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो काम है ना, जल्दी-जल्दी खत्म हो जाता है। वो काम, बिकॉज़ आप माइनस एनर्जी से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इट जस्ट गेट्स डन फास्टर. हुँ, और ये सबके पास ये वाला एग्जाम्पल है. आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू, बट द थिंग इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. वी डोंट ऑब्जर्व एट दैट लेवल. वी डोंट एक्नॉलेज कि हाँ ये इस तरह से हो सकता है. हुँ, इवन अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज अगर मैं आपको दूँ आपके हाई एनर्जी में, आप क्विकली उस कॉम्प्लेक्स चैलेंज का आउटकम लेके आ सकते हैं. आप थिंक थ्रू कर सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए वेरी ईज़िली. बट अगर आप माइनस एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं ऑन दैट लिस्ट, यू वुड फाइंड दैट जो रोज़मर्रा का मंडेन टास्क भी जो है ना, इट विल बी लाइक, इट विल टेक much more than you have thought of to accomplish. हाँ, हाँ, दैट आई एग्री ऑन। फिर इंट्यूशन हमें हाई एनर्जी लाने में कैसे हेल्प करेगा? मैं बैठी अपनी लिस्ट को देखा मैंने, तो हाउ डू आई गेट दैट हाई एनर्जी फ्रॉम माय इंट्यूशन? Intuitions doesn't give me energy. Intuitions comes from the energy, and हुँ, and when that intuition is coming from the high energy zone, intuitions always gives you creativity. Intuitions make you curious, right? And intuitions make you communicative. So when there is curiosity, right, when you are curious, you are in the learning space, you do things faster. But when you say that okay ये पता ही है, इसको धीरे धीरे करना है, हो जाएगा, होगा नहीं होगा, you are like literally on that minus energy level. You are not operating from that space. So so the important task here is to be on the higher energy level for your intuitions to start working. Because if you see in your work, in your day to day life, even if you're having a conversation maybe with your child and they are facing a challenge, if you are in the right energy zone, you are able to tackle it better.
the conversations that you do are at a very different level, right? But if you are on the minus energy zone, you will find more overwhelm out of it. Ki I was dealing with my own stuff and now this is also there, and now how do I respond? Or my responses are not at that level what I would like it to be, right? So intuitions give you that space of creation. Intuition is creation, and the creation could be in your work space, it could be in your family space, it could be creation with yourself, that you are learning something and some insight just pops up and say, oh wow, this I can use it in my any other areas of life. And that can only happen, see, intuitions don't arrive in the space of pressure. So जब नेगेटिव एनर्जी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, टेकिंग द सेम एग्जांपल दैट यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी अकम्प्लिश, और आप कह रहे हैं कि इसको मैं कैसे अकम्प्लिश करूं, और आप नेगेटिव एनर्जी से चल रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये टाइम पावर्टी है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहां पे क्रिएटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं है. इट विल बी जस्ट अ मंडेन, ड्रैगिंग योर सेल्फ वाला स्पेस, जहां से आप जस्ट काम करते जाएंगे और वो ड्रैग होते जाएगा. तो जो काम आपने 1 घंटे का प्लान किया है, वो अगर आप माइनस नेगेटिव एनर्जी से स्टार्ट करेंगे विद द टायर्ड स्पेस ओनली, कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ, इतना सब करना है, वो 1 घंटे का काम कई बार आपका 2 ढाई घंटा भी लेता है. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैज ऑब्जर्व दिस, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू. बट जब आप उसको हाई एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, वो 1 घंटे का काम आपका 10 मिनट में भी फिनिश हो सकता है, बिकॉज आपके पास वो क्रिएटिव एनर्जी है जो जिससे वो जल्दी जल्दी चीजें हो सकती है. एंड दैट्स व्हाट आई एम Okay. टॉकिंग अबाउट हियर, कि जब आपकी एनर्जी राइट होती है, आपके इंट्यूशंस आपको वो जो आप लिस्ट कह रहे हैं ना, वो लिस्ट आपकी जल्दी जल्दी फिनिश हो सकती है, बिकॉज आपने शायद 8 घंटे का प्लान किया है, मे बी यू माइट बी डन इन 4 आवर्स 5 आवर्स. एंड that's what I work with when I work with business owners, when I work with working professionals, whenever I work with people, I work on their energy. And it's a very practical approach. What I do is I ask people, and I'm wanting the audience also to do this, to create their energy map. Energy map Mhm. is like tracking your energy. एक टाइम को हम जस्ट बेस लेंगे, हर 1 घंटा, हर 2 घंटा आप अपनी एनर्जी को ट्रैक कीजिए, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो एंड वेरी हाई. और आप अपने आप को ट्रैक करने के बाद ये 2 या 3 क्वेश्चंस पूछेंगे. पहला क्वेश्चन, कि मैं किस सिचुएशन सिनेरियो में था या थी जब मैंने वो एनर्जी लेवल एक्सपीरियंस किया. लो भी हो सकता है, सारे एनर्जी लेवल्स के लिए. नंबर 2, कि मैं किन लोगों के साथ थी, और क्या वो मुझे एनर्जी दे रहा था या मेरा एनर्जी ड्रेन कर रहा था, बिकॉज वो एनर्जी लेवल से हमें पता चलेगा, जब हाई एनर्जी है तो मैं किन लोगों के साथ थी, जब लो एनर्जी तो मैं किन लोगों के साथ थी. नंबर 3, मेरा खुद के साथ क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मैं खुद के साथ क्या बात कर रही थी उस वक्त. Mhm. क्योंकि कई बार हो सकता है कि मान लो मैत्री मेरे साथ कोई बात कर रही है और मैत्री कुछ भी बोल रही है, लेकिन इट्स नॉट इम्पैक्टिंग मी, मेरा अंदर कॉन्वर्सेशन यही है, मैं क्यूरियस हूँ कि वो क्यों बोल रही है जो भी बोल रही है. मे बी शी इज नॉट टॉकिंग पॉजिटिव, बट वो क्या कह रही है, वो क्यों कह रही है. अगर मैं क्यूरियस हूँ तो फिर मुझे वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, मैत्री ने जो भी कहा है. या मैत्री पॉजिटिव बात कर रही है तो आई एम इंटरनलाइजिंग, मैं उस पॉजिटिविटी को अंदर ले जा रही हूँ. तो उस वक्त मेरा खुद के साथ क्या डायलॉग है, इंटरनल डायलॉग, इंटरनल कॉन्वर्सेशन. ये 3 सवाल और ये ट्रैकिंग 7 दिनों के लिए अगर आप करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी का गेम चल क्या रहा है. आपको ये पता Hmm. चलेगा कि मेरे हाई एनर्जी ज़ोन्स कौन से हैं, किन लोगों के साथ मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, या किन लोगों के साथ मेरी लाइफ मुझे लग रहा है कि दैट इज़ गोइंग बेटर. क्या मेरा खुद के साथ बातचीत चल रही है, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लोगों और सिचुएशन से ज़्यादा मेरी खुद से क्या बातचीत चल रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड टू नो. एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़, हम लोग लो एनर्जी को रिप्लेस कर सकते हैं धीरे-धीरे करके, बिकॉज़ दैट्स वेयर योर एनर्जी लीक्स आर.
और उसमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। स्टार्ट टू स्पीक योर ट्रूथ। आप जो भी फ़ील कर रहे हैं, जो आपकी सच्चाई है, वो आप कहिए लोगों से। कई बार हमको फिट इन होने के लिए हम अ, Yeah. अपने आप को शो अप नहीं करते ना, जिस तरह से हमको शो अप करना है, राइट? हम लोग Mm-hmm. चाहते हैं कि हम फिट इन हो जाएँ पूरे, कहीं हम किसी फैमिली के साथ कह सकते हैं, We all फ्रेंड्स want के to साथ। belong वी ऑल somewhere. वांट टू बिलॉन्ग। सो वो बिलॉन्गिंगनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन जो आपकी तरह हैं, उनके साथ आप बिलॉन्गिंगनेस क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट होके भी आप बिलॉन्गिंगनेस क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ चैलेंज। बट आपको कई बार क्या लगता है, बिलॉन्गिंगनेस या बिलॉन्ग होने के लिए मुझे इस तरह का ही बनना पड़ेगा तो ही मैं बिलॉन्ग कर सकती हूँ, राइट? Hmm. तो उस चीज़ को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग योर ओन ट्रूथ। दिस इज़ मी एंड आई एम स्टिल वांटिंग टू बिलॉन्ग एंड आई एम स्टिल इंटेंडिंग टू बिलॉन्ग, राइट? यू Hmm. मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, बट जो हमारा इंट्रिंसिक होता है ना कि बिलॉन्ग करना है, तो हमको सेम सेम होना पड़ेगा। सब चीज़ें करनी पड़ेंगी Yeah. जो अलग लोग साथ में लोग कर रहे हैं। सो स्टार्ट स्पीकिंग योर ट्रूथ। नंबर 2, जो आप खुद से कह रहे हैं, वो चीज़ हमेशा फॉलो कीजिए। बिकॉज़ डू व्हाटएवर यू से, वो एक बड़ा एनर्जी लीक है। जब हम कहते हैं कि हम शो अप करेंगे इस टाइम पे और आप नहीं शो अप कर पाते, यू फील द एनर्जी लीक। यू फील द एनर्जी लीक राइट देयर, राइट? Yes. सो डू व्हाट Mm. यू से। एंड नंबर 3, सेट योर बाउंड्रीज। अपने लिए, अपनों के लिए यू हैव टू स्टार्ट सेटिंग द बाउंड्रीज, दैट यू नो यू कांट बी ऑल ओवर। ओवरवेल्म भी उसी से आता है ना, जब आप हर जगह हो, सब जगह आप रहना चाहते हो, और उसके भी डीप रूटेड थिंग्स है। सी, ऑल दीज 3 थिंग्स आर द रीजंस व्हाई एनर्जी लीक्स। बट देन उसके पीछे जो सटल रीजंस है, वो सटल रीजंस भी अलग अलग होते हैं अलग अलग लोगों में। तो दैट्स Yeah. अबाउट डीलिंग विद द लो एनर्जी जोन, विच इज अ बिग स्पेस। मैथी, टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब मैं काम करती हूँ लोगों के साथ, वी डील विद ऑल ऑफ दैट। द हाई एनर्जी दैट यू कैन स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इज कि मेरा कॉन्वर्सेशन खुद के साथ क्या था, तो मुझे ऐसे लगा कि द एनर्जी इज जस्ट पंपिंग अप लाइक दैट, आई एम फीलिंग दैट हाई एनर्जी। मैं किन लोगों के साथ थी, विच आई फील यू नो द वाइब इज मैचिंग, द एनर्जी इज मैचिंग। हाउ कैन आई क्रिएट मोर दोज ऑफ स्पेसेस? आई एम नॉट सेइंग दैट कि हर टाइम आप उन्हीं लोगों के साथ रह सकते हैं या जो भी है, बट you can you can recreate the emotion, not the surroundings of people, but you can recreate that emotion which is giving you the high energy. So this Mhm. energy map thing right there helps you to identify your low, medium and high energy, and when you start to work on this, आप इस पे काम करते हैं 7 दिन, बहुत हो गया, मतलब 3 दिन के बाद आपको समझने लगेगा कि ये ज़ोन मेरे लिए है, नहीं है। एंड वहाँ से जब आप हाई एनर्जी ज़ोन्स में ज़्यादा रहने लगेंगे, उतनी आपकी क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी दोनों बढ़ती जाएगी, और जब क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी, आप यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग दोज़ इंट्यूटिव हिट्स। इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, यू नो, वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल इंट्यूटिव साइड ऑफ इट। डिसीजन मेकिंग, यू विल बी एबल टू लाइक, अब यू विल नॉट पुश ऑफ डिसीजंस कि मैं बाद में करती हूँ, बिकॉज़ यू नो मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, राइट? इट ऑलवेज़ हैपेंस ना कि हम आधा चीज़ें एनालाइज़ कर लेते हैं फॉर अ डिसीजन टू हैपन, और फिर हम कुछ तो करके उसको साइड में रख देते हैं, इसको और सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट्स आई वांट टू शेयर हियर कि being a CA, he had to work on a lot of work for his clients in terms of some cases that he had to work with. So he told me कि he came on a discovery call and he told me, Shraddha, कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको मैं सोचता हूँ कि मैं बाद में करूँगा, थोड़ा-सा देखता हूँ, आई आई फ़ील कि इसको देखना पड़ेगा करके आई कीप इट असाइड, एंड जब डेडलाइन होती है, देन आई जस्ट पिक इट अप एंड आई जस्ट डू इट। So this was a very classic scenario where he Mhm. knew कि करना क्या है, लेकिन because of the thing he was just putting it aside कि इसको देखना पड़ेगा। So decision making, you are pushing it away, and that came from his one of his childhood experiences when he was in first standard कि teacher told him you have to read it thoroughly more for you to get it.
तो he was carrying that identity right there, but when it was time, right, जब deadline है, he was able to execute it as an adult. So हाँ, it ऐसा मेरे साथ भी होता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो कभी-कभी मुझे लगता है ये टास्क बड़ा है, मुझे करना है, मुझे पता है, लेकिन जब बिल्कुल मोमेंट आ जाएगा, उस दिन करेंगे। इनफैक्ट मेरा अपना सोशल मीडिया कैलेंडर, आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, आई वर्क फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, लेकिन जब अपनी ही पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाने की बात आती है ना, तो मुझे लगता है यार कौन बनाएगा? देन व्हेन ऑन द डेज आई हैव टू पोस्ट, लाइक मैंने सोचा है कि अभी मैं वीक में 3 बार पोस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, चलो 3 बार करना है। तो जैसे ही मंडे आता है, मंडे को कुछ पोस्ट करना है, अब क्या पोस्ट करना है वो मैं उसी वक्त सोचती हूँ, उसी वक्त पोस्ट पूरा डिजाइन करती हूँ, कैप्शन लिखती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। राइट, अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे पहले 2-3 दिन पहले उस चीज को अगर प्लान कर लूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा शायद। लेकिन दैट पार्ट, दैट प्लानिंग की अरे फिर बैठ के उसके बारे में सोचना पड़ेगा, छोड़ो। तो आई ऑल्सो ब्रश इट अंडर द कारपेट, और मंडे को याद आता है कि हाँ अब चलो करना है, तो उस पे फिर मैं वर्क करती हूँ। तो डेडलाइन में लोग कहते हैं ना, आई थ्राइव ऑन डेडलाइंस। आई थिंक इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू बट आई डू दैट अ लॉट। See, it's okay as long as it is working for you, but it is not taking away a lot of energy out of you. We हम्म, have different kinds of people, right? And it doesn't have to be like everyone has to be a planner or organized well in advance, you know. We have people who are last minute people who do well with the deadlines, as you said, right? As long as it is not taking away your energy कि हम्म, मैंने सोच लिया होता तो अच्छा होता, there is no guilt coming in कि अरे अभी पोस्ट करना है तो I'll have to spend another 30 minutes on it and I don't have that 30 minutes, I have other things to do, I should have done it in advance. As long as that's not coming, done. हम्म, And if you are planning for it कि 30 minutes मुझे देना ही है इसको मंडे को, you are putting a deadline plan in right there and you are through. So it doesn't have to be right or wrong. I always say that, you know, your core, the way it works, the way it works. With the core being intact, how you align the rest of the elements for you to feel that energy, for you to invite those intuitive spaces, that creative zones for your own self. That's it, right? You don't have to go on changing yourself fully for that. And that's a very important thing, I believe. या जो आपकी पर्सनालिटी है, या जो एज यू सेड आपका कोर है, उसके अकॉर्डिंग और दूसरी चीज़ों को अलाइन करो, तो आई थिंक वी विल थ्राइव रादर देन ट्राइंग टू चेंज आवर कोर नेचर कि हाँ ये भी ऐसे कर सकते, जैसे उस सक्सेसफुल पर्सन ने किया था वैसे करते हैं, उनका मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं। आई थिंक उससे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे उसको लॉन्ग टर्म में। आप नहीं कर पाओगे मैत्री बिकॉज कैसा है ना आई ऑलवेज से स्ट्रैटेजीज डोंट वर्क अनलेस यू वर्क एंड हम्म, व्हेन डू यू वर्क आप तभी काम करते हो जब आप अलाइनमेंट में होते हो और हम्म, आपकी अलाइनमेंट कब होती है जब आप आपके कोर से अलाइंड हो जैसे आप हो जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हो और जैसे आप हो उसमें जब अलाइनमेंट होती है तब रिजल्ट होता है जबकि ओके, आप जैसे आप हो और आप किसी और की स्ट्रैटेजी ले रहे हो जैसे आपने कहा कि इट वर्क्स फॉर सक्सेसफुल पीपल की मॉर्निंग में यू शुड गेट अप एंड डू ऑल ऑफ दैट सी रिचुअल्स आर इम्पोर्टेंट बट जो रिचुअल्स आपके लिए काम करते हैं वो आपको ढूंढना या जरूरी है रादर देन फॉलोइंग समवन एल्सेस रिचुअल्स बिकॉज हम्म, जब जब अलाइनमेंट मिसिंग है ना तब आप कितने भी रिचुअल्स फॉलो कर लो आई नो ऑफ पीपल हु जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग वो करते हैं सारा रिचुअल करते हैं पर रिजल्ट नहीं आ पाता हम्म, क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐसे करना चाहिए बट वो अलाइन नहीं है उस चीज को दे ड्रैग देमसेल्व्स या तो जब ड्रैग कर रहे हो तो आप वैसे भी नेगेटिव एनर्जी में हो बिकॉज वैसे भी आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो वहां पे हाँ, रेजिस्टेंस एक ही काम करता है रेजिस्टेंस सिर्फ परसिस्ट करता है रेजिस्टेंस कुछ करता नहीं है और कुछ होने नहीं देता तो रेजिस्टेंस को हटा के ना यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन recreation. That's what I say.
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना रिक्रिएशन है, जितना आप फन कर रहे हैं अपने साथ, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी हाई है। उतनी ज़्यादा आपका इंट्यूटिव स्पेस इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। एंड एवरीवन मस्ट हैव नोटिस्ड, आई एम श्योर हम सबके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैत्री, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू। जब आप मज़ा कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, अपने काम में आप खुश होते हैं, आप आपके फ्रेंड्स से कनेक्ट कर रहे होते हैं, आपका सेंस ऑफ क्रिएशन बहुत हायर होता है। और उस वक़्त अगर कोई अपनी चैलेंज लेके आपके पास अगर आ जाए, तो आपके पास उस चीज़ का जवाब भी होता है। आपके पास उस अपने खुद के सवालों का जवाब आप फाइंड आउट कर पाते हैं। एंड आप या स्माइल कर रहे हो, उस समय मैं सोच सकती हूँ कि ये मुझे आपके बहुत साथ भी फनी होता है। सिनेरियो याद आ रहा था व्हाट यू वर सेइंग कि व्हेन यू आर एंजॉयिंग व्हेन यू आर हैविंग अ गुड टाइम एक्चुअली मतलब कोई बड़ी-बड़ी बातें करने की जगह एक छोटी-सी बात मुझे याद आई कि जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ एंड व्हेन वी आर टॉकिंग हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद एक-दूसरे से मिले, अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो अपने अंदर से ज्ञान आता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। करेक्ट। सो यही तो अंतर्ज्ञान है, यही अंतर्ज्ञान है। दिस इज़ इंट्यूशन। यू वी या ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो हाई एनर्जी से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है ना, हुँ, दैट्स योर इंट्यूशन। बिकॉज़ आप अपने फ्रेंड से मिले, यू वेंट इंटो द हाई एनर्जी ज़ोन, राइट? हुँ, और वो हाई एनर्जी ज़ोन से फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई। जो चैलेंजेस पॉसिबली चल रहे थे, उसका सॉल्यूशन ऐसे मतलब फटाफट, फटाफट, फटाफट यू गेट दैट सॉल्यूशन जल्दी-जल्दी कि ऐसे ही ऐसे, ऐसे-ऐसे हो गया खत्म काइंड ऑफ। एंड यू आर मलिंग ओवर इट पॉसिबली फॉर अ वीक, 2 डेज़, 10 डेज़ कि यार इसको कैसे सॉल्व करूँ? मे बी यू मे बी यू माइट थिंक कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई है तो आई शुड नॉट गो एंड मीट माय फ्रेंड्स। ऐसे भी होता है लोगों के साथ कि वो कि ये सब चीज़ें वो साइड में रख देते हैं बिकॉज़ माय हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट हैपनिंग, गेटिंग इट? हाँ, But my thing is you should enjoy. It has to be fun. The more fun it is, the more intuitive you are. Why are children more intuitive? मैत्री पता है because they are having fun. उनको क्यों यस। चीज़ें पता होती है, उनके अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो उनके पास ना बहुत सारे सवालों का जवाब ऐसे ही होता है आसानी से, राइट? यस, यस। और श्रद्धा आपने ये बोला कि अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है तो अपनी एनर्जी को अच्छा करना है। ओके, डेफिनिटली। तो हमने अपनी एनर्जी पे वर्क किया और कोई सिचुएशन आई, वी वर्कड ऑन दैट और हमने कोई डिसीजन लिया अपने इंट्यूशन को फॉलो करके। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन उल्टा हो जाए। मतलब हमें लगा था कि इसका ये आउटकम आएगा, ये जो हमारे फेवर में होगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि उल्टा हो गया उसका। अब बोला जाता है कि यूनिवर्स ने जो प्लान किया है वो हमेशा ही आपके फेवर में है, चाहे हो चाहे नहीं हो। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि मान लो हमने सोच के करा लेकिन उसका उल्टा हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करें उस सिचुएशन में? क्या हमारा इंट्यूशन गलत था या फिर कुछ और ही रीजन है उसके पीछे? सी, इंट्यूशन से जो आउटकम आएगा ना, वो कभी गलत हम्म, नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट बिकॉज़ इंट्यूशन हमेशा एक्सपेंशन एनर्जी है, हम्म, व्हाटएवर वे इट विल बी। अगर अगर कुछ गलत आ रहा है इसका मतलब वो डिसीज़न थिंकिंग से हुआ है। और थिंकिंग और हम्म, इंट्यूशन में मैंने आपको डिफरेंशिएशन पहले ही बताया है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये गलत हो सकता है और फिर आप डिसीज़न ले रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि अरे मुझे लगा ही था कि ये गलत होगा। वो इंट्यूशन नहीं है, वो हम्म, थिंकिंग है आपकी। तो ओ, जब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आ रहे हैं, तो आप वो थिंकिंग से जा रहे हैं, आप इंट्यूशन से नहीं जा रहे हैं। सो इंट्यूशन ऑलवेज़ वर्क्स इन योर फेवर. इट इज़ ऑलवेज़ देयर टू expand you, give you that expansion. It will never, it will never shrink you like that कि ये गलत हो गया। ऐसा ओके, सिचुएशन नहीं होगा, ये थिंकिंग से आएगा अगर ऐसे कुछ आया तो। ओके। तो मुझे आपसे बात करके ये भी समझ में आया कि जो इंट्यूशन है वो हमारा अपने आप से ही कनेक्शन है। तो बिल्कुल, और आई थिंक हम अपने आप से इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आज के टाइम में कि हम सब चीज़ें कर रहे हैं, सबकी नीड्स देख रहे हैं, अपने बिजनेस की नीड देख रहे हैं या अपने जॉब की नीड देख रहे हैं, अपनी फैमिली की नीड देख रहे हैं। अपने आप से हम पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हैं। बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, बिल्कुल। और आपने उसके लिए हमें अपनी एनर्जी रेज़ करने का भी पूरा रोड मैप दे दिया कि क्या-क्या करना है, सारे स्टेप्स बता दिए। डेफ़िनेटली। और श्रद्धा, अगर देयर इज़ वन थिंग एंड मे बी अ फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू टू
connect back with ourselves. We would love to know your views on that. What are your tips or maybe any mantras? वेरी सिंपल थिंग है, द एनर्जी मैप इटसेल्फ विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, बिकॉज वो एक ऐसा टूल है जो मैंने डिवाइस किया है, दिस टूल, नो आई ऑलवेज शेयर कि ये जो टूल है ना, ये आपको अवेयरनेस लेके आ जाएगा, आप रियलाइज करने लगेंगे, आप कॉन्शियस हो जाएंगे वो चीज़ को कि मैं एनर्जी कहाँ दे रही हूँ, या मैं एनर्जी कहाँ दे रहा हूँ, कहाँ देना चाहिए बेसिकली, और मेरा अपने आप से कॉन्वर्सेशन क्या है। सो एनर्जी मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, मतलब आज से 3-4 दिन लगातार अगर आप बहुत कॉन्शियसली उस चीज़ को करेंगे, आपको पता चलेगा और सटली डिफरेंस भी पता चलेगा जो सीप इन होने लगेगा। तो अगर आप इसको 1 महीना करके देखेंगे ना मैत्री, आपको यू विल फाइंड द होल गेम इज़ शिफ्टेड ऑटोमैटिकली। एक एक Hmm. सिंसियर ये चीज़ है। दूसरा टूल व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज़, सी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन एंड ऑल से आपका एनर्जी एंड चैनलाइजिंग होता है, बट एवरीबॉडी कांट मेडिटेट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हाँ, अबाउट इट, कि नहीं कर right. सकते लोग, क्योंकि थॉट्स ही इतने हैं कि शांत तो हो ही नहीं सकता मन, राइट? पर जब Hmm. शांत नहीं हो सकता तो क्या हम एक पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो सकता है, जैसे आप अभी जहाँ पे भी बैठे हैं, यू माइट हैव अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, और यू आर सीइंग मी ऑन दिस वीडियो, व्हाटएवर wherever you are, 30 seconds gaze on any of the picture, you know, if you are sitting to a window के बाहर 30 seconds एक पॉइंट पे, मे बी कोई वॉल हो सकती है, कोई भी चीज को आप 30 सेकेंड्स के लिए आप फोकस्ड देखिए, फोकस्ड, एंड देन आस्क, ये चीज मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही है, व्हाट इज Hmm. द मैसेज। आपको रियलाइज होने लगेगा कि शायद पहले 3 4 5 बार कोई मैसेज समझ नहीं आया कि यार ये क्या एक्टिविटी मैं यही मैं सोच रही कर थी रही कि हूँ। मेरी विंडो से मुझे पेड़ और बिल्डिंग्स दिखती हैं। क्या मैसेज आने वाला है? करेक्ट, बट यू नो उसको और इम्पैक्टफुल अगर करना है, तो ये हाँ, एक्टिविटी करने के पहले आपको कोई सवाल है अगर, तो आप उस सवाल को पूछिए खुद को, ठीक है? ओके, और उस ओके। सवाल को ऐसे पूछिए कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हमेशा कॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस माइंड जवाब देता है। यस और नो का जवाब हमें फटाक से मिलता है, जल्दी से मिलता है। वो हुँ, आपका जो थिंकिंग माइंड है वो दे रहा होता है। बट जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, तब वो सबकॉन्शियस माइंड आपका आंसर दे रहा होता है। आपके इंटरनल इंटरनल सेल्फ से वो आंसर आता है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, ये जो मेरा चैलेंज है मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? हुँ, अगर आप ये पूछेंगे इस चैलेंज में मेरा कुछ होगा या नहीं, तो जवाब होगा नहीं होगा, बिकॉज वो थिंकिंग माइंड आपका जवाब दे देगा फटाफट, राइट? कि नहीं होगा, जाने दो, हाँ, तुम छोड़ दो इसको। लेकिन हुँ, जब आप ये पूछोगे कि हाँ ये सिचुएशन है, सिनेरियो है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, हुँ, और फिर उसके बाद इस सवाल के बाद आप मे बी आप अभी आपके घर के बाहर आप बोल रहे हैं विंडो के बाहर पेड़ है, बिल्डिंग्स है, इफ यू जस्ट गेज, एक जगह पे गेज रखिए 30 सेकेंड, जस्ट जस्ट ऑब्जर्व वन स्पेस 30 हुँ, सेकेंड्स। उसके बाद जब आप जवाब पूछेंगे कि अब ये मुझे क्या जवाब दे रहा है, आपको हुँ, रियलाइज़ होगा कि वो जो सवाल आपने पूछा था, उसका जवाब वो सटल मैसेज में आपको ज़रूर मिलेगा। इनिशियली डोंट गिव अप, हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, लाइक नॉट रीचिंग एनीवेयर, बट ये हुँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है टू बी ऑनेस्ट, जो आपको हेल्प करेगा टू ब्रिंग दैट अलाइनमेंट। जो कनेक्शन हुँ, है ना, वो कनेक्शन इज अलाइनमेंट, द कनेक्शन इज द umbilical cord between you and yourself, which is the root of your intuitions, which is the root of your high energy। जैसे आपने एग्जाम्पल मुझे दिया ना कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं मिल रही हूँ तो एनर्जी हाई है ना, क्योंकि उस हुँ, वक़्त आपका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। सो हुँ, एनर्जी हाई कब होती है? जब आपका कनेक्शन आपके साथ ज़्यादा है। जब आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं तो आप आपके लिए है ही नहीं अवेलेबल, तो आपका एनर्जी लो हो जाता है। ये 2 टूल्स मैं कहूँगी, एक एनर्जी मैप है और दूसरा जस्ट गेजिंग 30 सेकंड्स, पुट योर गेज एनीवेयर, आप रूम में बैठे हैं, आप बाहर हैं, आप क्या हुँ, मैसेज है मेरे लिए इस मोमेंट में? जस्ट लाइक दैट, प्ले अराउंड विथ इट, हैव फन, जितना फन करेंगे ना उतना बहुत मज़ा आएगा।
और अलग-अलग एक्टिविटीज़ हो सकती है, लाइक विथ योर लाइट्स ऑफ कर दीजिए रूम में एंड यू ट्राई टू सर्च। कई बार हमको पता होता है ना हमारे रूम में ये चीज़ यहाँ रखी है और अंधेरे में भी हम लोग उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ। राइट? तो दीज़ आर ऑल सटल सटल स्पेसेस, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिकॉज़ क्यों, कैसे पता कर सकते हैं? बिकॉज़ हमको इंटरनली हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ है ना कि ये चीज़ यहाँ रखी है, इतने स्टेप्स पे ये है एंड दिस इज़ हाउ इट। सो वो अंतर्ज्ञान ना हर एक चीज़ में हमारे पास अवेलेबल है। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड देन ट्रस्टिंग इट। उसको ट्रस्ट Yeah. करेंगे, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके ट्रस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोला कि मेरे इंट्यूशन ने ये कहा है, मैं यही करूँगी। Mm. आप उसको चेक कीजिए, हिट और मिस बहुत बार होगा, बहुत बार हिट और मिस होगा, बट जैसे-जैसे हिट लगते जाएगा आपको रियलाइज़ होगा कि यू आर टैपिंग इनटू योर इंट्यूशन मच मोर। Okay, to trust your inner knowing. And Shraddha, I think this was the perfect way to end this conversation. But before I let you go, please tell me a little about your work and how can people connect with you? So I work with business owners and I work with corporate professionals. How I go about it is I conduct workshops, I do one on one or group sessions, and the easiest way to connect with me if you would want to work with me is I do a free discovery call of 45 minutes in which you can bring your challenges to me and I will be able to share what's blocking you, because intuitively I will come to know that this is your deep rooted subconscious blocks. As an intuition expert, that's my forte in my work, that I am able to reduce the preparation for change time, क्योंकि preparation for change के लिए ही टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। चेंज तो या तो है या तो नहीं है, राइट? It's the Uh-huh. preparation for change. So I massively reduce the preparation for change time because of my intuitive। तो वो मैं आपको डिस्कवरी कॉल में शेयर कर देती हूँ सो दैट हमारी जर्नी बहुत फास्टर होती है, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ नेशनल लेवल हर्डल रेसर, आपको पता ही है। सो मेरे लिए स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ। दे कैन और यू कैन गो टू माय वेबसाइट shraddhasubramanian.com एंड फ्रॉम देयर यू कैन बुक इट। You can follow me on Okay. social media platforms, and there also you will find the link to book a discovery call with me. सो थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर बीइंग ऑन लिटिल फिक्सेस और हमें इंट्यूशन के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। मुझे आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे एंड आई एम गोइंग टू फॉलो देम। और अब हमारा ये ईयर ख़त्म होने वाला है, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गो इन टू द न्यू ईयर विद न्यू एनर्जी, विद एन active intuition. So thank you so much, Shraddha, for your time to Little Fixes. Thank you so much, Maitri. I really enjoyed this conversation. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूबल लगा तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट। यू कैन ऑल्सो गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है @littlepixespodcast। दिस हेल्प्स मी इन ग्रोइंग द पॉडकास्ट और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो। बाय। When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you will get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.